इसमें भी पानी नहीं। ये तुम यहाँ क्या कर रहे थे? पानी नहीं है निकपत हो। चलो मैं मस्जिद जाता हूँ। बहू ये गड़े के टुकड़े उठाओ। भाभी, नाश्ता तैयार है? बस अभी कुछ देर में ही तैयार हो जाएगा। तुम बेड़ा सब्र करो, बच्चों नहीं खाना है। सिर्फ देख रहा हूँ, एक वक्त से देख रहा हूँ। दादाजी वेश के बच्चे ओए वो किसके लिए? वो बता दिया ना, वो मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ थी ना, रात से खाने को दिल नहीं करता, इश्तिहा बिल्कुल खत्म हो गई है। अच्छा, तो ये सुबह 11 पराठे, 3 कटोरे मक्खन, 2 चम्मच चाय, 7 अंडे और 1 बुरकी से उड़ाए थे। आज तो तुम ऐसा हिसाब किताब कर रही हो जैसे आज यौमुल हिसाब हो। अम्मा खाना तैयार है, वो लो संभालो, एक और भूखा भी आ गया, दिखाई नहीं देता तुम्हारे बेटा जो हुआ। अच्छा, तो गोया के तुम्हें खाली पेट कुछ नजर आता है गोया के। तो ये माँ भूख लगी है। लो एक और भूखा भी आ गया, आज पूरी भूखों की फौज आ गई है। दाजी दाजी सारे खेतों को पानी देकर आ रहा हूँ, भूख लगी है इसलिए खाना मांग रहा हूँ। जल्दी करो, कुछ खाने को दो। अच्छा बेटा, अभी मैं भी शहर तमाशा देखने नहीं गया था, दौलत शाह से मिलने कचहरी गया था, उसके दफ्तर में, समझ गए? दादी ये क्या है? कुछ नहीं है ना, कुछ तो है दादी, गोल गोल गोलियां हैं इश्तिहा बढ़ाने की, गोल गोल। दादी इतनी बड़ी बड़ी गोलियां? जब तबीयत ज्यादा खराब हो ना तो गोलियों का साइज भी बढ़ जाता है, समझ गए? तबीयत तो मेरी भी कुछ ठीक नहीं लगती दादी। अच्छा, तो मतलब ये है कि सबकी तबीयत खराब हो गई है। दादी तुम तो रोजाना शहर जाते हो, कल और ले आना बस। मेरे और काम भी होते हैं इसके अलावा, समझ गए? ओह ये तो
لڈو ہے لڈو لڈو دکھاؤ ذرا مجھے تو حکیموں کی دوائیاں سب اسی طرح کی ہوتی ہیں، مربع، چٹنی، انڈے کا حلوہ۔ داجی داجی خدا کے لیے اس عمر میں اتنا میٹھا اچھا نہیں ہوتا۔ یہ کسی کی مانتا ہے؟ تم حکیم افلاطون ہو، یہ میرا اپنا پیٹ ہے، میرا ذاتی پیٹ ہے، میری مرضی کھاتا ہوں نہیں کھاتا نہیں کھاتا، ایک دفعہ کھایا دوسری دفعہ بھی کھاؤں گا اور کھاتا ہی رہوں گا، سمجھ گئی؟ لکڑ کھاؤ، پتھر کھاؤ، میری بلا سے میرا سر مت کھاؤ، بس۔ تھمو ایک کٹورا زہر دے دو، شاباش۔ زہر؟ پیاس لگی ہے، پانی دے دو۔ اچھا پانی لایا داجی۔ داجی آپ یہ ہر وقت غصے میں کیوں رہتے ہیں؟ پانی ختم، خلاص۔ پانی ختم؟ تو کیا پانی کی بھی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے؟ اب یہ بھی راشن کارڈ پر ملنے لگے گا؟ آج پھر نہیں آیا ہوگا نا نلکوں میں پانی؟ ہاں فرید، یہ باری باری کون گیند پھینک رہا ہے؟ داجی یہ بچے ہیں، باہر کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے نا، اس لیے۔ یہ گلی ہے یا کھیل کا میدان ہے گوگشتو؟ سمجھاؤ ان بچوں کو۔ ہاں وہی داخلہ ہی تو ہے تمہارے بچے کا اسکول میں، ہم تمہارے لیے محلے میں یونیورسٹی کھلوا دیں گے۔ ہاں یعنی کہ دیکھو نا، خدا کی قسم آپ نہیں کہہ رہے، میں خود کھا رہا ہوں۔ کیا جناب؟ قسم اور کیا، میں ایک آدمی، ون مین، اور مسائل اتنے سارے۔ مائی گاڈ، اب دیکھو نا فون پھر بجنے لگا، میں ٹیلی فون سنوں یا آپ کے مسائل حل کروں؟ جی اوہ حضور آپ، جی 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 حضور جی، بڑے صاحب ہیں جی سر، حکم سر۔ اچھا جی سر، یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے، صاحب خود تشریف لا رہے ہیں۔ اچھا جی سر، جی یہ قوم کی پکار ہے سر، خوشی منا رہے ہیں آپ کی آمد پر۔ نعرہ جی صاحب برنف سے نفیس سماعت فرما رہے ہیں۔ پرندہ خان بس اے حضور جی، بس حضور آپ کی آمد کی بو سون کر ہی پاگل ہو رہی ہے یہ تمام قوم۔ سن رہے نا آپ یہ چیخو پکار؟ کچھ تم لیٹر ٹائپ کرو اور سیکٹری کو اندر بھجواؤ۔ جی حضور، جی جناب، جی لکھوائیے جناب، لکھوائیے مسائل۔ ابے خدا کے بندے، مسائل نہیں صاحب، مینو لکھوا رہے ہیں، مینو۔ جی ہاں جی سر، 10 سیر چپلی کباب۔ سر پھر تو مزہ بڑا ہی آئے گا جی۔ 5 جوڑے پنجے دار چپل۔ اچھا جی سر، یہ کوفتوں میں مرچ کتنی؟ جی 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 مجھے پتا ہے حضور، آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں، بٹیر یا تتر کا گوشت؟ تتر کا اچھا رہے گا۔ جی جی ہرن، یعنی کہ ہرن۔ جی 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 لکھو بھائی، ہرن ہرن مل جائے گی ساتھی حضور، مل جائے گی، کیوں نہیں ملے گی حضور؟ بس آپ کا بے چینی سے انتظار رہے گا، بس آپ جلدی تشریف لے آئیے۔ شکریہ، تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ۔ اور جناب ہمارے مسائل؟ لو سنو، ہم مسائل حل کریں یا صاحب کی آمد کے انتظامات کی تیاری کریں؟ دیکھو دوستو، زندگی ہے تو مسائل ہے، مسائل ہے تو زندگی ہے۔ یو آر رائٹ۔ یس سر۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ مسائل ہی ہماری زندگی کا ثبوت ہے،
तुम लोगों ने कब्रिस्तान में किसी मुर्दे को मसाइल में गिरफ्तार देखा है? नहीं। बस समझ लो, अगर तुम लोगों के मसाइल हल हो गए तो तुम्हें फिर जिंदा कौन समझेगा? क्या समझे? तुम जिंदा रहना चाहते हो या फिर अपने मसाइल का हल? जिंदा रहना चाहता हूं। शाबाश, ये हुई ना जिंदा कौमों वाली बात। जिंदा कौमों की निशानी क्या है? मसाइल कि सुबह शाम बदलती हैं जिनकी तकदीरें। बिल्कुल, हम आपके मसाइल पर पूरी तवज्जो देंगे। इन पर नोट्स लिख कर अफसरान बाला को पेश करेंगे। इन पर गौर होश होगा। सेक्रेटरी। यस। जोर किस बात पर हुआ? गौर होश पर करूं। शाबाश, ये हुई पर पूरी तवज्जो देंगे। इन पर नोट्स लिख कर अफसरान बाला को पेश करेंगे। इन पर गौर होश होगा। सेक्रेटरी। यस। जोर किस बात पर हुआ? गौर होश पर करूं। शाबाश, ये हुई ना बात। यस सर। मसाइल पर गौर होश होगा। कमेटी बैठेगी, फिर दूसरी कमेटी बैठेगी, फिर वो बैठी ही रहेगी। उसे उठाने के लिए मिन्नत समाजत करनी पड़ेगी और मसाइल दर मसाइल, मसाइल दर मसाइल, मसाइल चलते ही रहेंगे। कमेटियों की रोजी लगी रहेगी। तो फिर हो जाए कि सारे मसाइल। जरूर जरूर। मसाइल। अच्छा, अब तुम अच्छे बच्चों की तरह जाओ और मसाइल, मेरा मतलब है कि ये नारे आइंदा इंतखाबात के लिए संभाल कर रखना। देखो, जाया मत करना, इधर उधर। अच्छा मलिक साहब, ये मुसीबत कहाँ से आ गई? ओ, ये तो गंदले भी आए हुए हैं। सुबह से ये मेरा तीसरा चक्कर है। हुक्म। खड़े खड़े तो बात नहीं हो सकती ना, बैठ कर बात करेंगे। बैठो। अच्छा, बात करें। मलिक साहब, ये अफसर लोग किस मर्ज की दवा है? अच्छा, मैं समझा नहीं। नलकों में पानी नहीं है, बच्चों के लिए खेल कूद का कोई इंतजाम नहीं है। ये सब बंदोबस्त कौन करेगा? मैं क्या कह सकता हूँ? हाँ, तुम क्या कह सकते हो? सब कहना गुनाह नहीं है मलिक साहब। ना हिकमत शाह, मैं इस गांव का ठेकेदार हूँ, अफसर हूँ, मेरे पास कुछ इख्तियारात हैं। अजीब आदमी हो, तुमने उसकी हर बात का, हर काम का जो ठेका ले रखा है, उसके नुमाइंदे बने हुए हो, उसकी हर बात पर तुम सर हिलाते हो, तो मैं किससे बात करूँ? हिकमत शाह, तुम तो खामखा मलिक साहब को गिरबान से पकड़ रहे हो। इसलिए कि इसने मेरा हाथ पकड़कर जिम्मेदार लोगों के हाथ में दिया था। अब ये मेरा भी जिम्मेदार है। रंदल खान, इसको कहते हैं खुली आंखों में ऊंजा डालना। बिल्कुल बिल्कुल। चमचे, मैं चमचे से नहीं, मैं ताली के बैंगन से बात कर रहा हूँ। हिकमत शाह, अब मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? देखो मलिक साहब, न मुझे एजेंसी चाहिए, न मुझे फरमान की जरूरत है, न लाइसेंस की जरूरत है। हमारे साथ जो वादे किए गए थे उसका क्या बना, मैं ये पूछना चाहता हूँ तुमसे। बस बात क्या बात है सर? साहब की आमद, इश्तिहार छपाएगा जरीन गुल ठेकेदार। समझ गया सर, समझ गया। हाँ, तो आराइशी मेरा भी गुल खान के सुपुर्द कर दो। हुजूर, उसका कसूर? अरे कसूर क्या, आज वो लाखों में खेल रहा है, लाखों में, आखिर हमारी वजह से। मैं पूछूंगा, मैं समझ गए। हाँ हाँ, आपसे मिलना है, जुबानी जमा खर्च। ये कौन है? गोली मारे सर, कोई साइल होगा सर। यार मैं पूछती हूँ। तुम पूछती हो, पूछो, मैं इस बाबा। ओ हिकमत शाह बाबा। क्या है?
تشریف رکھیے بیٹھیے. ارے بھائی کچھ چائے مائے کا انتظام کرو. دیکھتے نہیں ہمارے کتنے معزز مہمان آئے ہوئے ہیں. یس سر. اچھا تو فرمائیے. ہاں وہ یہ ایک گیند، یہ دوسری گیند. تو میں ان گیندوں کو کیا کروں؟ بچے گلی میں کرکٹ کھیلتے ہیں، باری باری میرے سر پہ گرتے ہیں یہ بال. میں سمجھا نہیں ہوں. بات سنو، اپنے ہاتھوں میں اٹھاؤ اور خود میرے سر میں مارو. مارو. یہ کیا کہہ رہا ہے ملک صاحب؟ دراصل ان کے علاقے میں کھیل کا ایک میدان بنانے کا منصوبہ تھا. ایک مچھر وہ یاد دلانے آئے. چپ کرو نکبختہ. افسر نے افسری کی ٹریننگ کی ہے، یہ کوئی بچہ نہیں ہے، خوب سمجھتا ہے. انشاءاللہ تعالی بالکل اسی سال فن کی منظوری ہوئی نا تو پہلا کام سب سے یہی ہوگا. اچھا وہ پانی کا مسئلہ وہ بھی بہت جلد ہو جائے گا. ایک مسئلہ اور بھی ہے. وہ کیا؟ وہ میرے گھر کے سامنے ایک بڑا نالا ہے، یعنی کہ کیڑے مکوڑوں کی نرسری ہے. اب تم وہاں سے کیڑے مکوڑے سپلائی کر سکتے ہو. بالکل بالکل انشاءاللہ سب بالکل انشاءاللہ تعالی سب ٹھیک ہو جائے گا. ہو جائے گا لیکن قیامت کے بعد، ابھی اور اسی وقت. خیریت؟ وہ بڑے صاحب نے گاؤں کا دورہ رکھا ہے، وہ کہتا ہے لوگوں کو اکٹھا کرو، بات کرتے ہیں. تو اکٹھا کر لیں گے لوگوں کو، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ یار یہ ایک مچھا کو کون سمجھائے گا؟ السلام علیکم ملک صاحب. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ کیسے؟ آئیے ضروری کیا ہے؟ مہربانی. ضروری یہ تمہارا بابا ہر کام میں ٹانگ رہتا ہے، اسے سمجھاؤ نا. ملک صاحب میں تو اس کا بیٹا ہوں، بھلا بیٹا باپ کو کیسے سمجھا سکتا ہے؟ دیکھو اسے سمجھاؤ کہ ٹھنڈا کر کے کھایا کرو. ملک صاحب پہلے تم مجھے سمجھاؤ، پھر میں ان سے بات کروں گا. وہ بات یہ ہے ضروری کہ بڑے صاحب نے پیغام بھیجا ہے کہ وہ ہمارے گاؤں کے دورے پر آ رہے ہیں. اچھا تو ہم سب مل کر ان کی آمد کے استقبال کی تیاریاں کریں گے. اچھا تو پھر یہاں بھی آئے گا وہ، تو اپنے بابا سے کہو ذرا نرمی سے بات کرے ان سے، گاؤں کے مفاد کا معاملہ ہے وہ. اچھا ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا ملک صاحب. ٹھیک، اجازت ہے؟ بالکل. دیکھو اس میں ہم سب کی عزت ہے. ٹھیک ہے ملک صاحب، خدا حافظ. اجازت ہے. السلام علیکم. خدا حافظ. ہاں غندر خان، ایسے کرو کہ افسر صاحب کو اطلاع کرو کہ ہم نے بڑے صاحب کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دی. لاؤ بھائی ادھر کھڑا کر. شاباش شاباش شاباش. اعلیٰ مرتبت حضور فیض گنجو وہ اعلیٰ شان کے قدوم محمد لزوم نے ہماری سرزمین کو حمدوں سے سریا بنا دیا. سریا بنا دیا؟ یہ کیا لکھا ہے؟ یہ کیا لکھا ہے؟ بلا رہا ہوں سکری کے بچے کو، بلا. کیا ہوا سر؟ یہ سپاہ نامہ کون سی زبان میں لکھ مارا؟ یہ ایسی زبان ہے سر جو عوام کی سمجھ میں نہیں آتی. ہم نے عوام کے سامنے مخاطب ہونا ہے، کوئی جنات کے سامنے نہیں. عوام سے عوام کی زبان میں بات کرنے کی غلطی نہ کرے سر. کیوں؟ اگر وہ سمجھ گئے نا تو پھر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. یہ تو تم نے ٹھیک کہا. ویری گڈ ویری گڈ. دیکھو یہ فون کس کا ہے؟ شاباش. ہیلو، السلام علیکم سر. جی ہے جی، بڑے صاحب کا فون ہے. بڑے صاحب کا؟ جی سر. جی جی اچھا جی، بہت بہتر جی.
क्या हुआ सर? हमारा सपासनामा हाथ में मिल गया। क्यों सर? बड़े साहब ने दौरा मनसूख कर दिया है। वो आरैशी मेहराबों के लिए वो कपड़ों के थान, वो इस्तिकबाली गाड़ियों के लिए पेश की रकम सर। हम खुद आरैशी मेहराबों के नीचे से गुजरने के बाद बसों के जलूसों में गांव गांव फिरेंगे, लोगों के मसाइल हल करने के बहाने। सबसे पहले आप पहुंचो। अंदर हालत कुछ मुर्ख शुरुख का भी इंतजाम है या सिर्फ नारों से मैदान गर्म कर रहा है? संभालो इसे। तुम आ गए तो मुर्ख शुरुख का इंतजाम भी हो जाएगा। मैं आ तो गया हूँ मगर खाली पेट वापस नहीं जाऊंगा, समझ गए? जी यहाँ पर तकरीरें होंगी, वादे सबज बागात, मगर खाने को कुछ नहीं मिलेगा। मुझे पता है मुझे। मच्छा सब कुछ मिल जाएगा, तुम यहाँ बैठ तो जाओ। कहाँ बैठूं? मैं वहाँ आपके साथ बैठूंगा, शाना बशाना बैठूंगा। दाजी छोड़ो मारा दाजी माजी को। पेंदा खान, वो बड़े साहब सुनिए, ये उनका पैगाम है। ओ, क्या हुआ? बड़े साहब ने अपना दौरा मनसूख कर दिया। वो एक जरूरी काम के लिए चले गए और अपने साथ अफसर साहब को भी ले गए। अब क्या होगा? अब मैं बात करूंगा। मैं लोगों मेरी बात सुनो। ये साहब का चमचा है और साहब बड़े साहब का चमचा है, और बड़ा साहब जो है ना उससे बड़े साहब का चमचा है। ये सब चमचों के चमचे हैं। वो हमसे घर में भी नहीं बच सकेगा। हम मंसूबों का हाल उससे उसके घर में पूछेंगे। आओ मेरे पीछे आओ। क्या मक्खियों की तरह तुम हर वक्त कानों में भी बिना रही रहती हो? ये देखो, अरे बस ये कौन सा वक्त मार डाला, हर वक्त गोलाबारी करती हो, हर वक्त। हाय, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? एक तरफ हो जाओ एक बस्ती। अब नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे क्यों बेज़बान के पीछे पड़ गए? इसकी जुबान लंबी हो गई है, हर वक्त कुड़कू। मेरा तो दिमाग खराब कर दिया है इस कुड़कू ने। अभी मैं ठीक करता हूँ। गुड मॉर्निंग। कौन है तुम? बेबी, बाबा। कोई हमारे घर में घुसा है। ये क्या चीज है? गुड मॉर्निंग। अरे ये तो अपना बच्चा है बड़ा कैसा। मैं भी सोच रहा था कि चीज तो पुरानी है मगर खाल नहीं उड़ रखी है। आपको मेरा अर्जेंट का खत नहीं मिला? नहीं मिला। गोया बात क्या? मैं पास हो गया हूँ। अच्छा, अब तो इसकी मौत आ ही गई। छुड़ा जाओ बाबा, छुड़ा जाओ। बाबा, मैं तमाम पर्चे खाली दिए थे। पास तो हो गए हो ना? बिल्कुल। तो बस ये थोड़ा है। छुड़ा जाओ। मैं तमाम पर्चे खाली दिए, दोनों ने मुझे खौफ पास कर दिया। छुड़ा जाओ। भाग्य को बचाओ, तुम्हारे बाबा को तो पता नहीं क्या हो गया। हर शाख से उल्लू बैठा। अब तो इसकी मौत आ ही गई है। क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? किसकी मौत आई है? इस मूर्ख की मौत आई है निकबख्ती। इतनी दूर से नवासा खुशखबरी सुनाने आया है, दावत नहीं दूंगा। शुक्र है खुदाया, मैं समझा मुझे पास होने के जुर्म में मारना चाहते।
बरकत शाह, तुम सचमुच पास हो गए? सची मुची? बरकत शाह तो अजायब घर में रखने के काबिल है। अंगूठा छाप 12वीं पास इस तरह करो कि फटाफट इस बांग मार मूर्ख को पकड़ो और करो। नहीं बाबा, मैं तो मिठाई खाऊंगा। ना खाना ना, मैं तो मूर्ख खाऊंगा, गोया के नरम ग़िज़ा है। अरे इम्तिहान तो बच्चे ने पास किए और मुर्ख की रख तुमने लगा रखी है। ज़ेबो, जी बेटी जाओ ना बरकत शाह के लिए गरम गरम हलवा बनाओ जल्दी से जाके। हलवा भी ठीक है, एक वक्त दो, गोया के वो भी नरम ग़िज़ा है। पकाओ पकाओ। दाजी किसी ने क्या खूब कहा है, इलावा ईद के मिलती है और दिन भी मिठाई, गदाई कूचे हलवाई नामुराद नहीं। शाबाश, क्या मिठाई वाला शेर है, बड़ा नमकीन है। फिर कहो। दाजी मैंने तो कुछ नहीं कहा है। अच्छा ठीक है इस तरह करो कि पहले नमकीन चीज यानी कि मूर्ख, फिर मिठाई और आखिर में हलवा। तौबा तौबा खुदाया तौबा। तौबा तौबा खुदाया तौबा। तो इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? देखो, मूर्ख मेरी पसंद, मिठाई बरकत शाह की पसंद, हलवा गोया वो भी मेरी पसंद। मैं जाता हूँ और मिठाई का बंदोबस्त करता हूँ अभी और इसी वक्त। काके, अभी ओ काके, भाई जल्दी आओ, देखो ना ये दूध जल रहा है। अभी आए पहलवान जी। अरे ये क्या कर रहे हो जालिम, ये क्या कर रहे हो तू? क्यों, क्या हुआ पहलवान जी, कोई तौबा कर जोड़ेगी? भाई तौबे की बात नहीं है, अरे किसे देख लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे सैया बह कोतवाल तो फिर डर का है का। अबे ओ तानसेन शिवराज, ये काम तो हम भी करते हैं, लेकिन जरा एहतियात के साथ, तरीके के साथ। वो कैसे पहलवान? तुम जरा भाग के जाओ ना। किधर? एक जग पानी का और लबालब भर के लाओ, फिर अच्छा। तुम्हें बताऊं। और पानी ले आओ। हाँ जल्दी करो। अच्छा अच्छा अभी छोटे अभी जी जी 1 किलो मिठाई। 2 किलो मिठाई तो लो, ठीक है। ये छोटा कहाँ मर गया? ये आ गया पहलवान जी, आ गया। हाँ आ गया। हाँ, पानी ले आए? ये जी पानी ले आए। अब ये जग जरा प्यार से मुझे दे दो। ये ले लो जी। दे दिया? दे दिया। अभी जरा झांक के इधर उधर देखो। देख लिया। देख लिया ना? अब दुनिया वालों की तरफ पीठ करके, आंखें बंद करके, निहायत तरीके के साथ, सलीके के साथ दूध और पानी का संगम शुरू। देखें आहिस्ता आहिस्ता, चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता, तिरिंग तिरिंग, आहिस्ता तुड़ुंग तुड़ुंग, आहिस्ता। पहलवान जी। हाँ जी। ये दूध और पानी का संगम कुछ ज्यादा नहीं हुआ? अरे काके, तू काके का काका ही रहा ना आखिर। वो कैसे? अरे काके, गाद को चुल्लू चुल्लू दूध ज्यादा देते जाओ, इस तरह गाद भी खुश और हम भी खुश। मान गए उस्ताद, मान गया। हाँ। पर तो सर सुना नहीं। अरे तू ही सुना देना, अब और क्या फुलझड़ी उड़ाने वाला है तू? और मैं लाउटी अफसर जोश आ गए ने। तो फिर वो पकड़ दक्कड़ का आगाज हो गया है। ओए काके, तूने तो अभी थोड़ी देर पहले खुद ही कहा था। क्या कहा था? सैया बहे कोतवाल तो फिर डर काहे का। ओ मान गए उस्ताद, मान गए, थोड़ी उस्ताद ही मान गए। अरे हमें गायब कर दिया क्या? ये क्या कर रहे हो तुम? अरे ये हलवाई की दुकान पर दादाजी का फाफा, ये मुहावरा तो सुना था, लेकिन आज पहली बार देख रहे हैं ये। वो गरीब लोग थे यार, उनकी किस्मत में गोया इतना लजीज सामान कब था। तो फिर हुक्म कीजिए ना, क्या चाहिए आपको? ये किस चीज की दुकान है? ये मिठाई की दुकान है, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? दिखाई तो तुम्हें नहीं देता, यहाँ जूते तो नहीं बिकते,
मिठाई लेने आया हूँ नेकबख्ता। तो फिर ऑर्डर कीजिए ना कि ऊंचा पकवान चाहिए या कोई गुजारे वाला। वाला गुजारे वाले का बदल भी तो कुछ गुजारे वाला ही होगा ना, या फिर? हाँ देखे ना जी, ये ऊंचा पकवान जो होता है ना, इसकी कीमत भी जरा ऊंची होती है, और गुजारे वाला तो फिर गुजारे वाला ही होता है। वैसे मैं आपकी बात समझा नहीं। अच्छा, बात ये है ना गोया के खोटा सिक्का जाली नोट। तौबा तौबा हजरत, हम यहाँ जेल साजी करने बैठे हैं क्या? कान खोल कर सुन लो, खरा माल लोगे तो खरा माल दोगे। दो नरक एक ही गांव में नहीं चलेगा, समझे? तो फिर ऑर्डर दीजिए ना, क्या चाहिए आपको? हाँ इस तरह बोलो। बात यह है कि 8 किलो जलेबी। 8 किलो जलेबी? मीठा जरा कम करो, जलेबी नहीं जलेबियां। समझ गया। और इस तरह करो कि 4 किलो बर्फी। 4 किलो बर्फी? जरा मीठा जरा कम करो नेकबख्ता। मैं कोई समझा नहीं। बर्फी नहीं, बर्फी। अच्छा ठीक है। और 4 किलो लड्डू। 4 किलो लड्डू? नहीं, मीठा जरा कम डालते हैं, लड्डू कहते हैं। ठीक है काके। जी पहलवान जी। इन हजरत का माल जरा जल्दी तैयार कीजिए। अभी लो पहलवान जी, अभी लो। क्या हुआ बाबे? ये ये अंकबाजी क्यों करते हो? इस तरह क्यों करते हो? ये मेरे हाथ में कुछ पड़ गया बाबे। देखो मैं समझता हूँ, खूब समझता हूँ, समझ गए ना? ये क्या बोल? बाबा जी हाँ बैठे हैं, ऑर्डर तैयार करते हैं। बैठे आप। फिर मुकबाजी। मेरी बात तो सुनो। देखो बात ये है। हाँ बोलो क्या बात है? गलती हो जाती है। अच्छा गलती हो जाती है। ये क्या मैदान जंग बना रखा है तुमने यारा? इस खबीज को जरा मजा चकरा हो तो मार खाने में इससे मजा आता है। अजीब आदमी हो तुम गंदल काका। फेल हो गया है, नाक कटवा दी है जालिम ने। अच्छा फेल हो गया। अब फिर तो मुबारक हो गंदल काका। सरवली तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? गंदल काका दरअसल मैं भी इस पास और फेल के चक्कर में आया था, तो मुझसे बात नहीं बन रही थी इसलिए ना। मतलब क्या है तुम्हारा? वो मेरा भांजा नहीं है बरकत शाह, वो पास हो गया आपकी दुआ से। पास हो गया? वो नालायक। ये की बड़ी खुशी हुई। खुश तो होना ही है आपको गंदल काका। इस खुशी में हमने मोहल्ले वालों को दावत पर बुलाया है, और हाँ तुमने भी आना है कल दोपहर। हाँ बेफिक्र रहो, जरूर आऊंगा। अच्छा इजाजत है गंदल काका। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। देखा, हिकमत शाह की नवासी बरकत शाह का पास होना तेरे लिए और भी शर्म की बात है। नाले तमाम दिन मुकाबाजी करते हैं। मुबारक हो शाह बाबा। बड़ी खुशी हुई। इस बात की गोल में बरकत शाह के पास होने की। तुम्हें खुशी हुई है और मुझे हैरत। तुम्हें पता नहीं है, वो नालायक अब भी अंगूठा छाप। तो फिर पास किस तरह हो गया? बस खुदा की कुदरत। इम्तिहान के दफ्तर में कोई खातम था या सखिया सलाह खान बैठा होगा, उसने पास कर दिया है सदके या खैरात में। बैठो। शाहवली, वो गंदल खान को तो इत्तला कर दी है? जरवली लाला उसे बता चुका है दादी। अभी तक नहीं आया, अभी तक। मैं नहीं बोलता, इतनी देर से क्यों आए हो? न आते हमें इसमें तकरार क्या थी? क्या काका जी, मैंने सिर्फ शेर कहा है। हमारा शेर मेल को छोड़ो, एक वक्त हर वक्त शेर का डंडा उठाकर मत फिरा करो। जाओ अपना काम करो। मुबारक हो हिकमत शाह, तुम्हारे नवासे तो कमाल कर दिया। कमाल के पांव तोड़ दिए नेकबख्त अंगूठा छाप ने। बैठो। मेरी तो समझ में नहीं आता कि कौन सा काम दिमाग खराब हो। अरे लड़कियों,
तुमने चाय का इंतजाम कर दिया? बाहर हुजरे में मेहमान इंतजार कर रहे हैं। बेबे दादाजी को समझा रहे हैं ना। क्या समझाऊं बेटा उसे? हर वक्त अंगूठा चाप आखिर हद होती है हर बात पे। चल बेटा खफा मत हो, मैं उनको समझा दूंगी। अच्छा खातिर है वो खातिर है। जी बेबे। ये क्या? कुछ भी नहीं। और ये हिचकियाँ? गर्मी थी ना, बस में सफर किया है, बस उसी की वजह से। अच्छा ऐसा करो, देखो ये मिठाई पड़ी है ना, ये तमाम प्लेटों में लगा के और हुजरे में भिजवा दो। अच्छा मेहमान बैठे हुए। लो अभी नहीं। और बात सुनो, ऐसा करो कि 2 घूंट पानी पी लो, ये हिचकियों का इलाज होता है। जाओ। जी अच्छा। जेबो बेटी, मेरे घर पे बहुत काम है। अरे बेटी बात तो सुनना। अच्छा ये तुमने मुंह क्यों छुपाया हुआ है? वो बेबे ऐसे। और ये हिचकियाँ? वो बेबे ठीक हो जाएगी। या अल्लाह, सारे घर को हिचकियाँ आ रही हैं। लो